So in the last period, we have seen about the shell model. For the newcomers, I would like to share with you that so far we have started the third chapter of our this paper number 8, that is the nuclear forces and model. Many important articles of this particular chapter we have seen. Those who were absent are requested to contact me and try to understand. In the last period, we have seen the shell model, which explain us that the shell model is applicable to the nucleons which are moving around the nucleus, which are moving inside the nucleus in a cell. Just the shell model is analogous to that of atomic model. Am I correct? As electron moves in a circular orbit around the nucleus, and all the terms which are associated with the electron, they are associated with the nucleon which are moving around the nucleus, which are moving inside the nucleus. जो जो कंसेप्ट, जो जो टर्म इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में फिरते वक्त दरकार है, सेम जो है तो पार्ट जो है तो किसके लिए है? न्यूक्लियंस के लिए है, न्यूक्लियस के अंदर. So all these things we have seen. Now after having seen the shell model, the another important model that we are going to see here today is the liquid drop model. So first of all, we will see what is the liquid drop model, what are the assumptions, then we will see the expression for the semi-empirical mass formula or derivation of semi-empirical mass formula. Now what is liquid drop model? From the last two period, as you know, we were discussing about the models, because this chapter is also nuclear forces and model, isn't it? Now in the nuclear forces, we have seen that the nucleus of any atom is consisting of proton and neutrons. These are called as nucleons. Among these nucleons, there are the presence of three important forces which are called as the nuclear forces. Am I correct? Do you remember? Yes, sir. These nuclear forces are between proton-proton, that is called as the pp force. Nuclear force between proton-neutron, that is called as the nn force, np force and pp force. These three types of forces combinedly together called as the nuclear forces. Now these nuclear forces are strong or weak. These nuclear forces are strong or weak. It will depends upon the total number of protons or neutrons which are present, and they decide the stability of nucleus. This was also confirmed from our previous article, that is the shell model. Shell model also indicates us that the number of proton and number of neutron will decide the stability of nucleus. We have seen that odd number of proton and odd number of neutrons are there, then nucleus is less stable. If even number of protons and even number of neutrons are there, nucleus is most stable. And if the number of protons is even, number of neutrons is odd, or vice versa, then stability of the nucleus is in between, less and more. That we have seen. This was also confirmed from our last article, that is the magic number. Magic number was the number of proton or neutron, that is 2, 8, 20, 28, 32, 50, 82 and 134, 50, 82 and 126. If the number of protons or neutrons are one of these number, इन नंबरों में से एक नंबर अगर किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का रहेगा, या दोनों भी नंबर वो रहेंगे, तो वो न्यूक्लियस, वो नंबर कौन सा नंबर कहलाएगा? मैजिक नंबर, isn't it? Now, after having seen this shell model, the next article that we are going to consider is the liquid drop model, isn't it? Liquid drop model was proposed by the scientist Niels Bohr. अब आप बोलेंगे कि न्यूक्लियस और लिक्विड ड्रॉप का एक ऐसे तालमेल हो रहा, एक्चुअल में कोई तालमेल की बात नहीं है, बल्कि नाम पे से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड है, मिसाल के तौर पर पानी का कतरा है,
अपन ने ऐसा फेंके ऊपर से एक पानी का खतरा खतरा, खाली ड्रॉप, तो एक पानी का एक ड्रॉप जो है तो कैसा गिरता गिरते वक्त कैसा दिखता जमीन, अगर किसी सरफेस के ऊपर पानी का एक ड्रॉप अगर अपन ने गिराए तो कैसा दिखता हो, या पहला जो बूंद गिरता पानी का आसमान से बारिश के वक्त कैसा दिखता, लिक्विड। लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, पानी का कोई भी लिक्विड हो, पानी हो, ग्लिसरीन हो, एक ड्रॉप गिरा दिया अपन ने, या पहला एक खतरा बारिश का देखा ना, जिसको बोलते हैं बूंद, बूंदे गिर रही, एक बूंद और एक खतरा अगर गिर गया जमीन के ऊपर एक किसी सरफेस के ऊपर तो कैसा रहता शक्ल में, स्फेरिकल शक्ल का रहता, बराबर है। यस सर। तो आपको यहाँ पर ये बोलना मकसद है कि ए ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड, उसको जो जो कुव्वतें एक ड्रॉप बना के रखती, जो जो फोर्सेस रहते, सरफेस टेंशन रहता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स रहता, ये फोर्सेस रहते ना जो ड्रॉप को, लिक्विड के ड्रॉप को ड्रॉप बनाए रखते, इजंट इट, समझ में आ रही बात, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रहती, बराबर है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स रहता है कि नहीं, सरफेस टेंशन रहता, ये इतने फोर्सेस वो पानी के या किसी लिक्विड के ड्रॉप के साथ लगे रहते जो ड्रॉप को ड्रॉप बनाए रखते, एम आई करेक्ट। तो as the forces which are present in a drop of a liquid to keep it as a drop, the same are associated with the nucleus, जो फोर्सेस लिक्विड को लिक्विड ड्रॉप बना के रखती, करीब करीब वैसे फोर्सेस न्यूक्लियस को, यानी कि आप देखिए एक ड्रॉप गिरा और एक न्यूक्लियस कैसा है बोले, पढ़ के आए अपन ने कि न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, है कि नहीं, क्लोज्ड, बराबर है, कॉम्पैक्ट, हैविंग द न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन, है कि नहीं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो जो कुव्वतें रहती, जो जो फोर्सेस रहते, और वो न्यूक्लियस को एक स्फेरिकल छोटा बीच में का एक डॉट बना के रखते, उसी तरह की फोर्सेस, उसी तरह की जो है तो कुव्वतें किसके अंदर रहती है, एक लिक्विड के अंदर रखती, जो लिक्विड के ड्रॉप को लिक्विड ड्रॉप बनाए रखते, एम आई करेक्ट। That means all the forces and concepts which are associated with a drop of liquid are similar to that of forces which are present in a nucleus. And the outlook of the nucleus and a drop of liquid is also same. जैसा एक ड्रॉप लिक्विड का, एक ड्रॉप जैसा स्फेरिकल शक्ल का दिखता, जब एक बूंद गिरता पानी का या एक खतरा गिरता पानी का या किसी लिक्विड का, तो कैसा दिखता हो, स्फेरिकल शक्ल का दिखता। और वो स्फेरिकल शक्ल का क्यों रहता, कॉम्पैक्ट क्यों रहता, तो उसके अंदर सरफेस टेंशन रहता, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहती, उसके अंदर कोहेरेंट फोर्सेस रहती, उसकी डेंसिटी हाई रहती, बराबर है। आर यू गेटिंग? यस सर। इतने ही फोर्सेस किसके अंदर रहते, न्यूक्लियस के अंदर रहते, उसके अंदर सरफेस टेंशन, तो इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इसके अंदर न्यूक्लियर, नामा भले ही अलग अलग हो, काम अलग अलग हो, लेकिन ओवरऑल वहां जो जो कुव्वतें जो है तो लिक्विड ड्रॉप को लिक्विड ड्रॉप बनाए रखती, यहाँ पर न्यूक्लियस को न्यूक्लियस बनाए रखती, और एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड किसके जैसा दिखता, स्फेरिकल। स्फेरिकल तो दिखता, लेकिन किसके जैसा दिखता, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के, या दूसरे अल्फाज में न्यूक्लियस किसके जैसा दिखता, ड्रॉप ऑफ की तरह। And due to this model is called as the liquid drop model. That means by considering all the forces and concept associated with the drop of a liquid, we have to study the nucleus, and that's why we can consider that a nucleus is equivalent to a nucleus is analogous to a drop of a liquid. समझ में आ रही बात? Yes sir. A drop of a nucleus is equivalent to or analogous to a drop of liquid, and therefore this model is called as liquid drop model. समझ में आया क्या क्या होगा आर्टिकल में, न्यूक्लियस को, yes sir. यस, न्यूक्लियस को एक लिक्विड ड्रॉप के बराबर है समझ के सारे कंसेप्ट पढ़ने के, तो जो जो लिक्विड के ड्रॉप के अंदर का था सरफेस टेंशन, तो यहाँ पे भी सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, तो यहाँ पे भी सरफेस एनर्जी, है कि नहीं। तो वहां जो जो चीजें थे यहाँ सब सीधा न्यूक्लियस को लागू होंगे,
लिहाजा a nucleus of any element or any atom is considered to be analogous to that of drop of a liquid, and that model, and that's why this study or this model is called as the liquid drop model. This model was proposed by the Neil Bohr. This model is based upon the fact that molecules in the liquid are held together by the short range intermolecular forces. पढ़ के आए ना अपन ने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है तो एक दूसरे को हेल्ड टुगेदर है, किसकी मदद से, कौन सी कुव्वत की मदद से, विद द हेल्प ऑफ Binding energy. intermolecular forces known as the coherent forces. Secondly, the density of the liquid drop is very high. Same thing here, the density of the nucleus is also very high. Liquid drop model and a nucleus, कहाँ similarity है देखिए जी. Liquid drop is spherical in shape. Liquid drop is कैसे शक्ल का है, spherical in shape. काय की वजह से, due to surface tension acting towards the center, nucleus is also assumed to be spherical in shape. Am I correct? Similarity कहाँ से आई, क्या वजह से a nucleus is equal to liquid drop बोल रहे हैं अपन, तो क्या कहाँ सिमिलरिटी है, ये है सिमिलरिटी. कहाँ पे सिमिलरिटी है कि ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड इज स्फेरिकल. एम आई करेक्ट? काय की वजह से, ड्यू टू क्या रहता लिक्विड के अंदर, Surface tension. surface tension force acting towards the center. In the similar manner, our nucleus is also assumed to be spherical in shape. उन्हें भी स्फेरिकल तो इन्हें भी स्फेरिकल. आगे बात समझ में. सेकंड वन, डेंसिटी ऑफ ए स्फेरिकल ड्रॉप इज नोन टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वैल्यू. न्यूक्लियर डेंसिटी इज आल्सो फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स न्यूक्लियर वैल्यू. जैसा कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर उसकी डेंसिटी उसके वैल्यूम के इंडिपेंडेंट रहती, वैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियस की डेंसिटी न्यूक्लियर वैल्यूम के इंडिपेंडेंट है. हो गए दो सिमिलरिटी. समझ में आ रही बात कैफ? Yes, sir. थर्ड वन, मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन. लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो अंदर के अंदर हरकत करते, लेकिन स्फीयर के अंदर ही. तो वैसे जो है तो न्यूक्लियस के अंदर उसके न्यूक्लियस के जो है तो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, उसके अज्जा कौन है, उसके मॉलिक्यूल कौन है, प्रोटॉन और Neutron. न्यूट्रॉन. वो भी क्या करते रहते हैं, अपन पढ़ के आए, दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन, isn't it? So Motion. all these are similarity between a drop of a liquid and nucleus. Am I correct? And extending this analogy to the nucleus due to the random collision between the various nucleons, this may pick up the sufficient energy and escapes, and the model explain the nuclear reaction and nuclear fission. All nuclei are considered to be हो like, लिहाजा पूरे के पूरे न्यूक्लियाई को, किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो, कैसा कंसीडर करना उसको, किसके बराबर है बोलना उसको, किसके जैसा है बोलना, इज इक्वल टू और बी लाइक ए इनकॉम्प्रेसिबल ड्रॉप ऑफ लिक्विड. Isn't it? यानी कि hereafter we will consider that nucleus of any atom is equivalent to किसके जैसा है, किसको मिलता जुलता है, किसके जैसी मुतशाबिहत रखता है, with a Incompressible drop of liquid. liquid. Isn't it? So nucleus is spherical in shape. अब nucleus क्यों spherical है? Due to the symmetrical surface tension forces. Density of liquid is constant and independent of size or shape of the liquid drop. Binding energy per nucleon is constant. वहां जैसा surface tension constant रहती है, यहाँ पे क्या constant है? Binding energy per nucleon is constant, just as latent heat of the evaporation is constant. वहां liquid के अंदर latent heat रहती, यहाँ पर binding energy is there. Binding energy per nucleon is proportional to mass number. देख कर आए हमने, just as energy required to evaporate the liquid is proportional to its mass. वहां जैसा लिक्विड के अंदर लिक्विड को अगर तब्दील करने का गैस में, तो किसको डिपेंड करता है, इवापोरेशन एनर्जी लगती है ना. तो इवापोरेशन एनर्जी कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी, इसका इन्हिसार किसके ऊपर रहता, जितना ज्यादा लिक्विड रहेगा. दो तीन टिप के पास 2 या 3 बूंद है तो जल्दी इवापोरेट होंगे. पूरा गिलास भर के पानी रखे तो उसको इवापोरेट होने को टाइम लगेगा कि नहीं. तो इवापोरेशन एनर्जी कम लगेगी कि ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ना. थोड़ा सा एक गिलास पानी को गर्म करने को कम एनर्जी लगती, और एक भगोने में पानी गर्म करने को उतने देर तक गर्म करे तो गर्म होगा कि पानी. No, sir. तो इसका मतलब इवापोरेशन एनर्जी ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. एम आई करेक्ट? जितनी Yes, ज्यादा sir. मास रहेंगी उतनी ज्यादा इवापोरेशन एनर्जी लगेगी इवापोरेट करने को. उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी देखें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे किसको प्रोपोर्शनल, लेकिन
Mass number. Mass number. These are the similarity. Now semi-empirical formula, which is this article is most important from examination point of view. Therefore total binding energy of the nucleus, लिहाजा binding energy किसके ऊपर depend करती है? Binding energy of the nucleus is depend of mass of proton plus mass of neutron minus mass of nucleus, isn't it? And therefore using this formula, we have seen this formula in the previous one, that binding energy is equal to mass of proton plus mass of neutron minus mass of nucleus minus b upon c square, where c is the velocity of light in air. And therefore अब अपन क्या बोलेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। बाइंडिंग एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वॉल्यूम के ऊपर करती है। बाइंडिंग एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? पेयरिंग के ऊपर डिपेंड करती है। बाइंडिंग एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो इसके ऊपर वैल्यूम इवन और ऑड नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। तो बाइंडिंग एनर्जी को अफेक्टेड होने वाले तमाम फैक्टर का फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे। कोई जो है तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाएगा, कोई बाइंडिंग एनर्जी कम करेगा। जो बढ़ाएगा वो पॉजिटिव साइड के साथ आएगा, जो लेस करेगा, डिडक्ट करेगा, वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, isn't it? Therefore this is called as the semi empirical mass formula. Total binding energy EV is equals to, now किस किस का जो है तो एडिशन है ये, total binding energy is equal to EV वॉल्यूम एनर्जी, ES सरफेस एनर्जी, कूलम एनर्जी, एविंग एनर्जी प्लस पेयरिंग एनर्जी। तो याद रखिए दिस फार्मूला, टोटल बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू EV प्लस ES प्लस EC प्लस EA प्लस EP। अपन देखेंगे एक वन बाय वन क्या है EV, isn't it? Have you got up to this one, Tehreem? EV total binding energy of the nucleus is sum of volume energy, surface energy, coulomb energy, asymmetric energy and pairing energy. किसकी बात चल रही? वॉल्यूम किसका? किसका वॉल्यूम? प्लीज Tehreem, किसका वॉल्यूम? प्लीज टेल मी, वॉल्यूम किसका? Are you there, Kaif? Kaif Khan, are you there? Yes. So वॉल्यूम न्यूक्लियस का, सरफेस एरिया न्यूक्लियस का, कूलम एनर्जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की, पेयरिंग असिमेट्रिक एनर्जी यानी कि पेयर अगर सेम में रहे तो असिमेट्रिक, और पेयरिंग जो है तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। तो वॉल्यूम एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हैज ए कांस्टेंट वैल्यू over wide range of mass number, so we can say that volume energy EV is equals to AV into A, where AV is a constant. Are you getting, Tehreem? Are you there? Please unmute and tell me yes or no. समझ में आया क्या? अब अपन किसकी बात देखिए, तो न्यू के बाइंडिंग एनर्जी किसको किसको किस किस पे डिपेंड करती? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बाइंडिंग एनर्जी सम ऑफ वॉल्यूम एनर्जी प्लस Surface tension. प्लस कूलम एनर्जी प्लस असमेट्रिक एनर्जी प्लस पेयरिंग एनर्जी। वॉल्यूम एनर्जी तो समझ रहा आपका, किसका वॉल्यूम? न्यूक्लियस का। किसका सरफेस एनर्जी या किसका सरफेस एरिया? Liquid. यहाँ तो न्यूक्लियस की बात करेंगे ना हम, लिक्विड तो बोल दिए। यहाँ तो अब तो समझने के लिए रखे थे कि जो जो चीजें लिक्विड में वो चीजें न्यूक्लियस में है क्या नहीं? तो यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम किसका? न्यूक्लियस का। सरफेस एरिया या सरफेस एनर्जी किसका? न्यूक्लियस का। कूलम एनर्जी किसकी? न्यूक्लियस प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान जो कुव्वत दिफा है ना, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन्स भी है ना, और प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान कौन सी कुव्वत रहती? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग तो रहती, लेकिन वो तो बाइंडिंग तो है, वो तो बाइंडिंग एनर्जी तो दो है बोल के, लेकिन एक्चुअल में हमारा सिंपल लॉ क्या बताता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहती, जो कि रिपल्सिव कूलम रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं उसको। तो वो भी डिसाइड करेगी कि अंदर कितनी गड़बड़ हो रही, कितना रिपल्शन है, वो भी डिपेंड, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी किस किस पर डिपेंड रहेंगी? वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड रहेंगी। किसका वॉल्यूम? न्यूक्लियस का। सरफेस एरिया किसका? न्यूक्लियस का। कूलम एनर्जी किसकी? उस न्यूक्लियस के अंदर, हाँ, उस न्यूक्लियस के दरमियान अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसका असिमेट्रिक एनर्जी किसकी? यानी कि अगर पेयर्स नहीं बने, सिमेट्री नहीं बनी, तो किसकी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। और पेयरिंग भी किसकी? प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन की। मतलब एक न्यूक्लियस की बाइंड, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी हैव कंसीडर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल वी हैव डिसाइडेड दैट ए न्यूक्लियस इज इक्वल टू ए ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड। समझ में आ गया क्या? लिक्विड ड्रॉप, क्यों बोले लिक्विड ड्रॉप? कि a drop of a liquid is equivalent to a nucleus, या other words a nucleus is equal to a drop of liquid, isn't it? So EB is equals to EV plus ES plus EC plus EA plus EP, isn't it? So binding energy of any nucleus is sum of all these things. अब इसमें से कोई बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाता, कोई कम करता, वो देखेंगे हम। समझ में आया आपको यहाँ तक तहरीर? में आई गो अहेड? जी सर। The first one, now binding energy per nucleon has constant value. किसको डिपेंड करती है बोली? वैल्यू ओवर वाइड रेंज ऑफ द मास नंबर, यानी कि वॉल्यूम जो है तो टोटल किसको डिपेंड करता? वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम एनर्जी ईवी इट विल रिमेन कांस्टेंट, इजंट इट? देयरफॉर ईवी प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिए तो एक कांस्टेंट एवी, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कम नहीं होता। देयरफॉर एवी ईवी यानी कि वॉल्यूम एनर्जी, the component of the binding energy in terms of volume energy of the nucleus EV is equals to AV into A, where AV is what? What is this? AV is कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट, ठीक है। नंबर दूसरा फैक्टर कौन है? सरफेस एनर्जी। सरफेस न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद पार्टिकल have fewer neighbors than the nucleon lying deep inside the nucleus, so binding energy reduces। यानी कि सरफेस जितनी ज्यादा सरफेस के ऊपर जो न्यूक्लियस रहते, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कौन सी शक्ल का है? गोल शक्ल का है, यानी स्फीरिकल है। उसके अंदर भी न्यूक्लियस रहते हैं, उसके सरफेस के ऊपर भी न्यूक्लियस रहते हैं। एम आई करेक्ट? द सरफेस न्यूक्लियस, दैट मींस द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियस व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, they are lying on the deep inside the nucleus, so binding energy will reduce। देखिए भाई, न्यूक्लियस है, अंदर जो न्यूक्लियस है उनको निकालने को जो है तो ज्यादा, तो भाई कमरे के अंदर 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 बैठा हुआ है तो उसको निकालने को ज्यादा एनर्जी लगेगी, जो दरवाजे के पास बैठा हुआ है उसको निकालने को एनर्जी ज्यादा लगेगी। अंदर जो है उसको ज्यादा लगेंगी, उसको ज्यादा लगेंगी। जो सरफेस के ऊपर है, जो दरवाजे में बैठा, उसको आराम से खींच के निकाल सकते हैं अपन बाहर। है मैं करेक्ट? यस सर। तो इसका मतलब सरफेस एरिया अगर बड़ा रहा तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी जी? जिस सरफेस एरिया बड़ा है मतलब फैला हुआ है, दूर दूर है। सरफेस एरिया बड़ा मतलब न्यूक्लियस के अंदर सरफेस एरिया बड़ा है तो न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, तो वहां पर जो है तो उसको तोड़ना न्यूक्लियस को, या उसकी बाइंडिंग एनर्जी वहां कम रहेगी कि ज्यादा रहेंगी? कम रहेंगी सर। कम रहेंगी। दैट मींस इफ द सरफेस एरिया इज मोर, बाइंडिंग एनर्जी विल रिड्यूस, है कि नहीं? दूर दूर है तो आराम से निकाल लेंगे हम। समझ में आ रही बात तहरीम आपके? अरशद खान, कैफ, क्या बोल रहे थे समझ? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और टेल यस और नो। यस सर। That means if the surface बड़ा घर है, दूर दूर लोग बैठे हुए हैं मेंबर, तो उसको तोड़ के निकालना ज्यादा आसान है, जिसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी कम लगेगी। तो लिहाजा if the surface area of the nucleus is more, it will reduce the binding energy। लिहाजा डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू किसको? डिक्रीज जो हुआ बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड किया? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस। Can I write this equation like this? Then mathematically ऐसा लिखूं क्या? Surface energy of the nucleus is directly proportional to the mass number, that is with minus sign, it is equal to minus as a raised to 2/3। ये a तो कई के वास्ते आया कांस्टेंट है, मतलब मास नंबर है वो, और ये as क्या है? ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। माइनस साइन कई को है जी कि सरफेस एरिया क्या डिक्रीज करता? सरफेस एनर्जी क्या डिक्रीज करती? बाइंडिंग एनर्जी। तो ये जस्ट निगेटिव साइन है इसका। समझ में आया कि ये टर्म आपको? निगेटिव साइन क्यों है? ठीक है जी समझा। निगेटिव साइन इंडिकेट दैट दिस एनर्जी हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल, यानी कि टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी रहेंगी उसमें से अपन ने क्या निकाल देना? सरफेस एनर्जी निकालना, तो नेट बाइंडिंग एनर्जी रहेंगी। यानी कि दूसरे अल्फाज में भी बोल सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती? सरफेस एरिया की वजह से कम होती। यानी कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी किस किस का जमा थी? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू वॉल्यूम एनर्जी प्लस सरफेस एनर्जी प्लस कूलम एनर्जी प्लस असिमेट्रिक एनर्जी प्लस पेयरिंग एनर्जी। तो वॉल्यूम एनर्जी तो ऐड होती थी बाइंडिंग एनर्जी के अंदर, लेकिन सरफेस एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी में से क्या होंगी?
डिडक्ट हो जाएंगी, है कि नहीं? क्यों डिडक्ट हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ क्या है, क्या है ये माइनस साइन है। माइनस साइन है, यानी कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फ्रॉम द टोटल बाइंडिंग एनर्जी सरफेस एनर्जी विल बी डिडक्टेड, देयरफॉर इट इज हैज कम द नेगेटिव साइन। तीसरी टर्म कौन सी है जो बाइंडिंग एनर्जी को इफेक्ट करती? कूलम एनर्जी। किसके किसके दरमियान रहती है कूलम एनर्जी? बिटवीन प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स which are present inside the nucleus. The Coulomb energy of the nucleus is proportional to the potential energy of the Z proton packed together in the symmetric assembly of radius r. यानी कि वो न्यूक्लियस जिसका रेडियस r है उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स डिसाइड करेंगे और उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड करेंगे कि कूलम एनर्जी कितनी रहेंगी। एम आई करेक्ट? कूलम एनर्जी का एक फार्मूला था Z into Z minus 1 a raised to 1 by 3 and it will also reduce। समझो प्रोटॉन्स ज्यादा है तो इनके दरमियान क्या ज्यादा रहेंगी? एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा है। इफ न्यूक्लियस इज देयर इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर, देन अमंग द प्रोटॉन्स Coulomb repulsive force is more, isn't it? If the Coulomb repulsive force is more, then nucleus is more unstable, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पहले से उनके अंदर झगड़ा चल रहा, समझो, समझ में आ रही के बाद? घर है, घर के अंदर पहले से ऑलरेडी मेंबरों के अंदर झगड़ा चल रहा, एक दूसरे की जो है तो नफरत कर रहे, तो घर को फोड़ना ज्यादा आसान है कि नहीं? तो बाइंडिंग एनर्जी वैसे न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन बराबर है। अनम्यूट ऑल ऑफ यू, प्लीज अनम्यूट एंड यस या नो बोलते रहिए। तो यस सर। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन? हाँ, न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन के दरमियान कौन सी वेव, कौन सी कुव्वत रहती? वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बराबर है क्या? यानी कि अंदर पहले फूटने के वास्ते झगड़ा चल रहा और अपन ने ऊपर से और कुव्वत लगाए, तो अपने को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी उसको तोड़ने को, कम करना पड़ेगी? कम करना पड़ेगी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी कम लगेगी कि ज्यादा? कम लगेंगी। यानी कि बाइंडिंग, ये जो टोटल वैल्यू रहेंगी कूलम एनर्जी की, बाइंडिंग एनर्जी को क्या करेंगी? रिड्यूस करेंगी। Am I correct? Yes sir. And therefore EC is equal to, once again it is minus AC, ये तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये Z into Z minus 1 raised to 1 by 3. This is the expression for Coulomb energy. It will also reduce the, क्या रिड्यूस करेंगी वो? टोटल बाइंडिंग एनर्जी। Am I correct? Next one. Yes sir. असिमेट्री एनर्जी। असिमेट्री बोले तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की सिमेट्री, सिमेट्री मतलब जोड़ी नहीं मिलना, प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा, न्यूट्रॉन्स की तादाद कम, या न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा, प्रोटॉन्स की तादाद कम, तो उस वक्त असिमेट्री रहेंगी। फॉर हेवी न्यूक्लियस बोले तो जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मोर, एम आई करेक्ट? न्यूक्लियस एक्वायर्स एन asymmetrical character due to which a force comes into play which reduces the asymmetry energy. सी है asymmetry, किसको सिमेट्री समझता ना, एकसानियत, और asymmetry बोले तो गैर यकसानियत। मतलब फिर देख लिए, एक न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स 5 है और न्यूट्रॉन्स 15 है, रहेगा कि तालमेल है क्या? एक प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन, हर एक को जोड़ी मिल गई, जोड़ी मिली तो समझे स्टेबल रहता ना, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, पूरे प्रोटॉन खत्म हो गए 5 के बाद, बाकी क्या बचे? असिमेट्रिक रहेंगे, उनकी जोड़ियां नहीं होंगी फिर। हाँ, जोड़ियां नहीं रहेंगी, यानी कि असिमेट्रिक, यानी कि न्यूट्रॉन्स आर फ्री, दे डोंट हैव द पार्टनर, isn't it? That means that the in which if the number of neutrons or number of protons are more, they give rise to another type of energy, and that energy it is called as the asymmetry energy, isn't it? And this asymmetry energy will also decrease the binding energy, क्योंकि बगैर जोड़ी के जो रहेंगे उनको तोड़ना तो और आसान है, am I correct? यस सर। तो इसका मतलब जितने ज्यादा बगैर जोड़ी के asymmetry जितनी ज्यादा रहेंगी उतना बाइंडिंग एनर्जी कम लगेगी। इसका मतलब ये असिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी कि कम करेंगी जी? whether the bind, yes what, tell me, yes Tahrim, tell me, रिपीट कीजिए सर क्वेश्चन। by if the number of asymmetry particles are more, whether they will increase the binding energy or decrease the binding energy? Decrease. Yeah, decrease the binding energy, therefore it will come with negative sign once again, therefore EA, symmetry energy is equals to minus AA, this is the constant of proportionality, A minus 2Z square divided by A, where A is the constant. कितने हो गए अभी तक?
वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम एनर्जी और चौथा असिमेट्रिक एनर्जी। एसिमेट्री। पांचवा फैक्टर कौन था जो बाइंडिंग एनर्जी को असरअंदाज करता था? दिस इज हियर, या जो अभी बताया ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्री। दिस इज लोअर एनर्जी, दिस इज हायर एनर्जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, देयरफॉर नेट n minus z is equals to क्या? 0. Here high energy में number of protons are less, number of neutrons are more, therefore here in this case extra कितने बगड़ जोड़ी के कितने न्यूट्रॉन मिले हैं? ये इसको लग गया क्या? It is called as asymmetry energy. Now next one is the pairing or shell energy. Nuclei with E1Z or E1N are highly stable. From previous article we have seen E1Z or odd N or odd Z or E1N are less stable. So this also affect the binding energy, and this effect contributes towards the volume energy, and that will be given by EP is equals to AP A raised to -3/4. यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स अगर ऑड है, ऑड इवन है तो स्टेबिलिटी कम है, इवन इवन है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, और अगर इवन ऑड ऑड है तो स्टेबिलिटी कम है। यानी कि ये भी डिसाइड करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी कम लगेगी क्या ज्यादा लगेगी। isn't it? That means it will कभी अगर ऑड ऑड है तो ये टर्म जो है कभी पॉजिटिव आएंगी और कभी निगेटिव आएंगी। समझ में आ रही की बात तैयारी तुम्हारे? क्या बोल रहे हैं हम यहाँ? फ्रॉम प्रीवियस आर्टिकल वी हैव सीन दैट if a nucleus is there and if it having even number of proton and even number of neutron, it is highest stable. तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा लगेंगी कि कम लगेंगी? ज्यादा लगेंगी। ज्यादा लगेंगी। even Z and odd n or odd Z or even n, it is less stable. तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कम लगेंगी कि ज्यादा लगेंगी? जो पहले से कम लगेंगी। कम लगेंगी। लिहाजा यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पेयरिंग भी डिसाइड करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी कम या ज्यादा। लिहाजा पेयरिंग एनर्जी और इट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम एनर्जी आल्सो पुट इट्स इफेक्ट ऑन द बाइंडिंग एनर्जी, एंड दैट पेयरिंग एनर्जी इट इज डिनोटेड बाय EP. EP is equals to AP A raised to -3/4. अब यहाँ पर ये कभी पॉजिटिव रहेंगी कभी निगेटिव रहेंगी, बराबर है, प्लस माइनस लेना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे दो केस में माइनस लिए थे, पहले केस में प्लस लिए, तो यहाँ क्या लेंगे हम? प्लस और माइनस। तो फिर अब पूरे 5 के 5 टर्म हो गए, वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम एनर्जी, असिमेट्रिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी। टोटल ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट? Total of this, all this is binding energy. Binding energy. Now add all this. EB is equals to AV पहला minus AS A raised to 2/3 minus AC, सब माइनस थे ना ये तीनों, AC Z minus 1 raised to 3 minus A raised to 3 plus या फिर यहाँ minus AP A raised to -3/3, and this is nothing but it is called as the semi-empirical mass formula for the binding energy. And this can also be seen with the help of this formula, this graph, मास नंबर एक्स एक्सिस को और यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर एक्सिस को लिए तो देखिए आप सरफेस एनर्जी कैसे जो है तो पहले जो है तो बढ़ती कांस्टेंट होती है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद अगर कूलम एनर्जी देखें हम, यानी कि किसकी बात चल रही है, हम लोअर मास नंबर से हायर मास नंबर की तरफ आए तो क्या होगा, कूलम एनर्जी पहले ज्यादा रहेंगी। क्यों ज्यादा रहेंगी? कि लाइट न्यूक्लिया में प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा है, न्यूट्रॉन की तादाद लाइट में, हाइड्रोजन हेलियम में प्रोटॉन ज्यादा है ना, जहां प्रोटॉन ज्यादा है वहां कूलम रिपल्सिव फोर्स कैसी रहेंगी? ज्यादा रहेंगी। उसका जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा कूलम रिपल्सिव फोर्स कम होंगी और बाद में कांस्टेंट रहेगी। उसी तरह ये वॉल्यूम एनर्जी, टोटल एनर्जी वाज शोन, दैट मींस द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज द सम ऑफ वॉल्यूम एनर्जी प्लस सरफेस एनर्जी प्लस कूलम एनर्जी प्लस असिमेट्रिक एनर्जी प्लस pairing energy, and we have added all this thing, that is EB, कूलम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी कैसे डिनोट करते हैं? EB से, पर न्यूक्लियन बोले तो डिवाइडेड बाय क्या है ये, क्या है ये? A मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू AV माइनस AS A raised to 2/3 माइनस AC Z into Z minus 1 raised to A by minus 1/3 minus A minus 2Z2 A plus these things, all these things, and this formula is called as the
semi-empirical mass formula, or you may call it the expression for the binding energy, or semi-empirical mass formula for the binding energy. And this we have drawn, ये फार्मूला हमने ड्रॉ करे, ये कहां से लिए जी कंसेप्ट, सरफेस एनर्जी, वॉल्यूम एनर्जी, कहां से उठाए थे कंसेप्ट अपन ने ये, विद द हेल्प ऑफ liquid drop, by considering that the nucleus is equivalent to a drop of a liquid, and this is nothing but this is called as binding energy. Now achievement क्या है इसका, कि ये स्टेबल न्यूक्लियस को बताता, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस को बताता, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी डिपेंड करता, और विद दिस वन वी कैन आल्सो एक्सप्लेन दैट लिक्विड ड्रॉप मॉडल आल्सो एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन. ये न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते न्यूक्लियस के टूटने का जो रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर फ्यूजन. दैट न्यूक्लियर फ्यूजन वी विल आल्सो सी इन द नेक्स्ट पीरियड. दैट मींस लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या क्या एक्सप्लेन करता, लिक्विड ड्रॉप मॉडल explain the stability of the nucleus is due to the binding energy of each nucleon. The radioactive activity of the nucleus is also explained by the liquid drop model. Artificial radioactivity is also explained with the liquid drop model, and liquid drop model is also successfully explain the fission reaction. And failure of this model is that it fails to explain the high stability of the nuclei with magic number. यानी कि मैजिक नंबर रहा तो कब हाई स्टेबिलिटी होती है वो इसने नहीं बताया. और सेकंड इसका फेलियर या ड्रॉबैक ये है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द मेजर्ड स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियर. सो दिस आर द फेलियर ऑफ द लिक्विड ड्रॉप मॉडल. डिफरेंस बिटवीन शेल मॉडल एंड लिक्विड मॉडल इज दैट द लिक्विड ड्रॉप मॉडल आर्टिफिशियल, ये तो उसका फेलियर हो गया. आर यू गेटिंग तहरीम? It fails to explain the high stability of the nuclear magic numbers. It also fails to explain the measured spin and magnitude. दो फेलियर है, बाकी के उसके पॉजिटिव है, उसका सक्सेस है. डिफरेंस क्या है शेल मॉडल और लिक्विड ड्रॉप मॉडल में? इन लिक्विड मॉडल इट अज्यूम दैट न्यूक्लियन इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द इंटरमीडिएट नेबर, but in shell model treats the nucleus at individually, and it is assumed that nucleons do not interact with each other. शेल मॉडल क्या बोलता है कि सबके साथ इंटरेक्ट नहीं करता बल्कि लिमिटेड के साथ करता, जबकि लिक्विड ड्रॉप मॉडल ये बोल रहा है कि न्यूक्लियंस स्ट्रांगली इंटरेक्ट विद ऑल द नेबर्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. सो विद दिस वन दिस आर्टिकल इज कंप्लीटेड. हैव यू गॉट? तहरीम बीच में आप थोड़ा सा एग्जिट हो गए थे, बट हैव यू गॉट? आई विल पुट द वीडियो ऑफ द सेम. So with this one, liquid drop model is completed. This article is most important from the examination point of view. Not only from the examination point of view, but as far as the study of nuclear physics is concerned, these two models, shell model and liquid drop models, are most important. And from the examination point of view, if we consider, then out of these two model, one will be exactly oriented in the examination. अगर आप पेपर पैटर्न देखें तो अगर अक्टूबर में शेल मॉडल पूछा तो एनुअल में जो है तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल पूछता या वाइस वर्सा होती. यानी कि बोलने का शॉर्ट मतलब यह है कि एनी टाइम these two articles are asked in the examination without any fail.